ریاستی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریباً 40 سالوں سے ہر سال جنوری کے پہلے ہفتے میں ڈائری کی اجرائی عمل میں لائی جاتی ہے، اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے جمعرات 2 جنوری کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں اطلاعات کے کمشنر ایس ہریش کے ہمراہ TWJ کی ڈائری کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے امکنہ ہیلتھ کارڈ اور ایکریڈیشن کارڈ کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ IJU کے سابق صدر دیولاپلی امر، تلنگانہ اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر KV راحت علی، جنرل سیکریٹری کے نارائنا، IJU کے قومی سیکریٹری وائی نریندر ریڈی، نیشنل ورکنگ کمیٹی کے ارکان کے ستیہ نارائنا، TWJ کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری کلکوری رامولو، سیکریٹری کے سری کانت ریڈی، خزانچی وائی وینکٹ ریڈی، ریاستی ورکنگ کمیٹی کے اراکین A راجیش، B کرن، سید غوث محی الدین، انل، IJU کے صدر سیکریٹری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ناگر کرنول ضلع میں ایک تیز رفتار کار الٹ جانے سے خاتون جاں بحق ہو گئی اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ناگر کرنول ضلع کے پیدا مدنور میں ایک تیز رفتار بے قابو کار الٹ گئی، جس کے نتیجے میں سڑک سے گزر رہی 40 سالہ لکشمما نامی خاتون کار کی زد میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس حادثے میں کار ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا ہے۔ کار کے الٹ جانے اور خاتون کے ہلاک ہو جانے کے اس واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر غلاف روانہ کیا۔ تاریخی چار مینار کے دامن میں واقع لاڈ بازار کے چوڑیوں کے تاجرین کی جانب سے غلاف مبارک تیار کیا گیا ہے۔ مجیب بینگلز کی قیادت میں اجمیر شریف میں خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر غلاف مبارک تیار کیا گیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پارٹی کے دفتر دارالسلام میں خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر چادر روانہ کی۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر قائدین اور تاجرین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ وقار آباد ضلع کے تانڈور میں 14 سالہ لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ والدین نے تانڈور ٹاؤن پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اولڈ تانڈور کا رہنے والا 14 سالہ لڑکا محمد سمیر نماز ادا کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن رات دیر گئے گھر نہیں لوٹا۔ والدین نے محمد سمیر کو اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب کے پاس تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملا، جس کے بعد پریشان حال والدین نے تانڈور پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے لڑکے کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی ہے۔ RJD رہنما لالو پرساد یادو کی بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کو انڈیا اتحاد میں شامل ہونے کی پیشکش پر کانگریس رہنما شکیل احمد خان نے کہا کہ اگر گاندھی کے پیروکار گوڈسے کے پیروکاروں سے خود کو الگ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے چیف منسٹر نتیش کمار کو دعوت دی ہے کہ وہ انڈیا اتحاد کا حصہ بن جائیں۔ لالو پرساد یادو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیف منسٹر نتیش کمار کے لیے الائنس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لالو پرساد یادو کی اس پیشکش پر کانگریس رہنما شکیل احمد خان نے کہا ہے کہ اگر گاندھی کے پیروکار خود کو گوڈسے کے پیروکاروں سے الگ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ KVIC صدر منوج کمار نے گرام ادیوگ وکاس یوجنا کے تحت کمہاروں میں الیکٹرک ویلز اور کاریگروں میں موبائل فون کے مرمتی کٹس تقسیم کیے۔ گرام ادیوگ وکاس یوجنا کے تحت KVIC کے چیئرمین منوج کمار نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی زیر اہتمام تربیت حاصل کرنے والے افرادات میں اسنادات کی تقسیم عمل میں لائی۔ دریں انہوں نے کمہاروں میں الیکٹرک ویلز اور کاریگروں میں موبائل فون کے مرمتی کٹس بھی تقسیم کیے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے طب و صحت کے مسائل کا جائزہ لیا۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے جمعرات کو محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے
طب و सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने गैर मुतादी अमराज के सर्वे पर तफसीलात हासिल की। मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में भी दरियाफ्त किया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में हर जिले में NCD क्लिनिक कायम किए हैं। वज़ीर सेहत ने महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के हमरा NCD क्लिनिक की कारकर्दगी और मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। राजन्ना सिरसिला जिले के सिरसिला टाउन में महकमा ट्रांसपोर्ट और महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम ड्राइविंग लाइसेंस मेले के दूसरे मरहले का इनेकाद किया गया। ज़राए ने बताया कि सिलसिला टाउन में महकमा ट्रांसपोर्ट और महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मेले के दूसरे मरहले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला SP अखिल महाजन भी मौजूद थे। अखिल महाजन ने कहा कि हर वो शख्स जिसने 18 साल की उम्र मुकम्मिल कर ली है और वो गाड़ी चला रहा है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जिला SP ने शहरियों से ड्राइविंग लाइसेंस मेले से इस्तिफादा हासिल करने को कहा है। रियासत तेलंगाना के घटके सर में BJYM के सदर पवन रेड्डी और उनके साथियों ने गौरक्षा के नाम पर एक मवेशी ताजिर आमिर कुरैशी पर हमला कर दिया। गौरक्षा के नाम पर तेलंगाना में मवेशी ताजिर के साथ मारपीट की गई है। ज़राए ने बताया कि आमिर कुरैशी मवेशियों को लेकर नलगुंडा से हैदराबाद आ रहे थे कि घटके सर में BJYM के सदर पवन रेड्डी और उनके साथियों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला और मारपीट की। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने अवाम को मजलिस के तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हल्का असम्बली याकुतपुरा के पत्थरगट्टी डिवीजन के AIMIM कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों की तफसीलात बताई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरक्याती कामों में कोताही के लिए तनकीद का निशाना बनाने और झूठी खबरें फैलाने पर सैयद सोहेल कादरी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इंतखाबात के बाद से मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ वजाहत पेश की। इस मौके पर मौला का चिला इलाके के मजलिसी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आदिलाबाद जिले में समग्र शिक्षा के असातिज़ा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वुज़रा की तस्वीर वाले मास्क पहनकर एहतजाज दर्ज करवाया। समग्र शिक्षा असातिज़ा की गैर मुअय्यना हड़ताल 24वें रोज़ भी जारी रही। जुमेरात को एहतजाजी असातिज़ा ने आदिलाबाद में कलेक्ट्रेट से NTR चौराहे तक एक रैली निकाली। तमाम एहतजाजी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वुज़रा की तस्वीर वाले मास्क पहने नजर आए। उन्होंने वज़ीर आला और वुज़रा से उनसे किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। सूर्यापेट जिले के पेनपहाड़ मंडल पुलिस स्टेशन में रकम की तकसीम पर कांस्टेबल और होमगार्ड के दरमियान मारपीट हुई, जिसके बाद आला हुकाम ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पेनपहाड़ मंडल पुलिस स्टेशन में नए साल का जश्न मनाने के लिए दी गई रकम की तकसीम पर SI और कांस्टेबल के दरमियान झगड़ा हुआ। लफ्जी जंग देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। पुलिस थाने में लोगों की मौजूदगी में दोनों पुलिस एहलकार एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। ये मामला जिला SP सनप्रीत सिंह तक जा पहुंचा। SP सनप्रीत सिंह ने इस वाक़े का इल्म होने पर कांस्टेबल और होमगार्ड को मुअत्तल कर दिया है। मेडचल मलकाजगिरी जिले में खाम माल की नकलो हमल करने वाली लॉरी हाई टेंशन तार से टकराने के बाद शोला पोश हो गई। ज़राए ने बताया कि मेडचल मलकाजगिरी जिले के GD मिटला पुलिस स्टेशन हदूद में खाम माल की नकलो हमल करने वाली एक लॉरी कल रात देर गए हाई टेंशन तार से टकराने के बाद शोला पोश हो गई। इतला मिलने पर आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने बताया है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों मुशीराबाद हल्के के भोलकपुर डिवीजन में सरकारी स्कूल के 10वीं जमात के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए गए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मुशीराबाद असम्बली हल्के के
भोलकपुर डिवीजन में सरकारी स्कूल के 10वीं जमात के तलबा में सालाना मिलत मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर भोलकपुर डिवीजन कॉरपोरेटर गौस तलहा यामीन के अलावा मजलिस के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना जेनको में एई और केमिस्ट के ओहदों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों ने खैरताबाद में विद्युत सुधा के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि तेलंगाना जेनको में एई और केमिस्ट के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहान का इनेकाद हो चुका है। असनादात की तस्दीक का अमल भी मुकम्मल किया जा चुका है। इसके बावजूद भी उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे नहीं दिए गए हैं। जुमेरात को मुंतखब उम्मीदवारों ने खैरताबाद इलाके में विद्युत सुधा के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और तकर्रुरात न देने पर हुकूमत पर नाराजगी जाहिर की। एहतजाजियों का कहना था कि पिछली हुकूमत की जानिब से तकर्रुरात किए गए थे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तकर्रुरात नहीं कर पा रही है। उन्होंने फौरन मुंतखब उम्मीदवारों के तकर्रुरी का मुतालबा किया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने वाज़ेह किया है कि खाजागुड़ा में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक़ शिकायत मौसूल होने के बाद ही कार्रवाई करते हुए ढांचों को मसमार किया गया है। खाजागुड़ा में गैर मजाज तामीरात को मसमार करने पर हाइड्रा को तनकीदों का सामना है। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बताया कि मुकामी लोगों ने शिकायत की थी कि श्रीलिंगमपल्ली मंडल में खाजागुड़ा, नानक रामगुड़ा में तोतानी कुंटा और भागीरतमा तालाबों पर तजावुजात की वजह से सैलाब का पानी आसपास के इलाकों में दाखिल हो रहा था। शिकायत मौसूल होने के बाद ही उन्होंने वहां का दौरा किया था। हाइड्रा कमिश्नर ने बताया कि तजावुजात को बर्खास्त करने से कबल नोटिस दिया गया था। रईतु भरोसा पर काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में स्कीम को 14 जनवरी से नाफिज करने का फैसला लिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। इजलास में रईतु भरोसा स्कीम के निफाज पर बातचीत की गई और किसानों से दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया गया। बताया जाता है कि किसानों से 5 से 7 जनवरी तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और 14 जनवरी से स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा। नागर कर्नूल जिले में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में पानी का रसाव हो रहा है। हुकाम ने पानी के अखराज को न रोकने पर छत गिरने का अंदेशा जताया है। जराये ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के दुमला पंता गांव में जेर जमीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पिछले 10 दिनों से पानी का रसाव हो रहा है। हुकाम का कहना है कि अगर पानी के अखराज को न रोका गया तो छत गिरने का खतरा है। बताया जाता है कि पानी के रसाव से डैम को कोई खतरा नहीं है। इंजीनियर्स ने हुकूमत से फौरी तौर पर जवाब देने और तकनीकी माहिरीन के साथ खुसूसी कमेटी तश्कील देकर तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। सक्सेस एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए 5 जनवरी को एम्स स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद अमल में आ रहा है। 10वीं जमात के होनहार तालिब इल्मों के लिए सक्सेस एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से 5 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक दोपहर 12 बजे एम्स स्कॉलरशिप टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है। एम्स स्कॉलरशिप टेस्ट में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको बता दें कि इस स्कॉलरशिप टेस्ट में शिरकत के लिए कोई फीस नहीं है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 जनवरी है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9652924369 पर रब्त किया जा सकता है। निर्मल जिले के भैंसा में नए साल का जश्न मनाने के लिए 2 दोस्तों ने मंदिर से रकम का सरखा किया। नए साल की तकरीबात के लिए मंदिर से पैसे चोरी कर लिए गए। जराये ने बताया कि निर्मल के भैंसा में नागा देवता मंदिर में 2 दोस्तों विशाल और रतन ने चोरी की। नए साल का जश्न मनाने के लिए दोनों ने न सिर्फ हुंडी से रकम चुराई बल्कि मंदिर की घंटियां भी चुरा ली। एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने बताया कि दोनों सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इबादत खाना हुसैनी में 5वें यौम शिया नेशनल इस्लामिक क्विज मुकाबलों के नताइज के ऐलान और इनामात की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मुकाबलों से नौजवान नस्ल में यकजहती पैदा होती है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को दीन की मालूमात की फराहमी पर नौजवान नस्ल के दिमाग में ज़िंदगी भर ये मालूमात रहती हैं और उनकी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों में आसानी पैदा होती है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर JC दिवाकर रेड्डी की मिल्कियत वाली JC दिवाकर ट्रैवल्स की खानगी बसों में आग लग गई। ये वाक़या अनंतपुर ज़िले के RTC बस स्टैंड में पेश आया। ज़राए के मुताबिक आग ने पहले एक बस को अपनी लपेट में लिया, जिसके फौरी बाद दीगर बसों को भी लपेट में आग ने ले लिया। ताहम फौरी तौर पर चौकस मुकामी अफराद ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम BC महासभा का पोस्टर रुकन कानून साज कौंसल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने हैदराबाद में जारी किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC तबकात को कामारेड्डी डिक्लेरेशन के नाम पर किए गए वादे को अमली जामा पहनाने और हुकूमत पर दबाव बनाने बानी व सदर तेलंगाना जागृति BRS की रुकन कानून साज कौंसल के कविता की क़यादत में ये पोस्टर जारी किया गया। मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC के लिए 42% रिजर्वेशन और कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी के मुतालबे पर ये BC महासभा मुनक़िद की जा रही है। एल्लोरू ज़िले में वहशियाना वारदात पेश आई। एक खातून रोडी शीटर ने एक शख्स को बुरी तरह मारपीट की। ज़राए के मुताबिक पानी के टैंक के पास बांधकर प्रभावती नामी इस खातून रोडी शीटर ने अपने बाप और अपने बेटे की मदद से वेंकटराव नामी शख्स पर शदीद हमला किया। वेंकटराव पर हमले के बाद प्रभावती ने उल्टा उसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। प्रभावती ने दावा किया कि एक शख्स उसे मार रहा है और 112 नंबर पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज करवाई। जख्मी वेंकटराव को मुकामी अफराद ने एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। जहीराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जहीराबाद बाईपास रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लारी बस से टकरा गई। इस हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के मज़ाफ़ती इलाके मिर्चल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वाशरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तलबा ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक कल रात तलबा कॉलेज से बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज करते हुए इस हरकत के लिए हॉस्टल के बावर्ची पर शुकों को शुबहात का इजहार किया। एहतजाजी तलबा ने गर्ल्स हॉस्टल के वाशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब करते हुए वीडियोग्राफी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के किरलमपूड़ी में टोल प्लाजा के करीब गांजा मुंतकिल करने वाली कार को रोकने की कोशिश पर कार ड्राइवर ने कांस्टेबल्स को टक्कर दे दी। इस वाक़े में कांस्टेबल्स शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बादशाह पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। तिरुपति ज़िले के पेल्लाकुरु मंडल में एक स्टील इंडस्ट्री में कल रात अचानक ज़बरदस्त आग लग गई। कंपनी का ब्राइलर फट गया, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े में कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। इन ज़ख्मियों को इलाज के लिए नाइडोपेट के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 वर्कर्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक दलित ने घर के सामने ठहरने पर पुलिस स्टेशन ले जाकर
बुरी तरह मारपीट का इल्ज़ाम लगाया। ये वाक़या सूर्यापेट ज़िले में पेश आया। ज़राए के मुताबिक रामा नामी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उसे बिला वजह घर के सामने बैठने पर पुलिस स्टेशन ले जाकर बड़ी ही बेदर्दी से मारपीट की। इसने कहा कि 2 कांस्टेबल्स वहां पहुंचे और पूछा कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। इसने जवाब दिया कि ये उसका घर है। मामूली बहस तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद 2 कांस्टेबल्स उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पर शदीद जल्दोकोब किया गया। इसने पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आला हुकाम से मुतालबा किया। 12 ट्रक जिनमें 337 टन जहरीला फुजला था भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रवाना हुए। 40 साल से ये फुजला वहीं पर पड़ा हुआ था। रात 9:05 पर यह ट्रक इंदौर के करीब पीठमपुर के लिए रवाना हुए। तवक्को है कि यह फुजला 250 किलोमीटर तवील ग्रीन कॉरिडोर और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज सुबह पहुंचेगा। मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। फौरी तौर पर मौसूला इत्तला के मुताबिक 36 साल किरण साकिन आसमानगढ़ ने कल शाम उस वक्त फांसी ले ली जब अरकान ख़ानदान घर में मौजूद नहीं थे। वो इस वक्त फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इसका ताल्लुक 2014 के बैच से बताया गया है। पुरअसरार तौर पर लापता या अगवा शख्स की नाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई। पंजागुट्टा पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर को इस इलाके का रहने वाला विष्णु रूपानी लापता हो गया था। अरकान ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। एसआर नगर बुद्धा नगर के एक मकान से बदबू आने की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची। मकान में एक मस्कशुदा नाश पाई गई, जिसकी शिनाख्त विजय रूपानी के तौर पर की गई। दुकान बाहर से मुख्फल थी। इस दौरान पंजागुट्टा एसीपी मोहन कुमार ने बताया कि मुतवफ़ी के जिस्म पर जख्मों के कोई निशान मौजूद नहीं थे। 11 नक्सलाइट्स ने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में गढ़चिरौली में 11 नक्सलाइट्स ने खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर ली। इन नक्सलाइट्स पर पुलिस मुलाजिमीन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम है। रेलवेज की जानिब से 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए आने वाले अफराद की सहूलत के लिए 10,000 से ज़ायद आम ट्रेनें और 3,134 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 18,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन प्रयागराज में खिदमत अंजाम देंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।